Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. Today, I am here in front of you with a new video for the class Earth. This is the second lesson of the class Earth book Honeydew. Lesson's name is Tsunami. It is not T tsunami. Tsunami is a Japanese word. Here, T always remains silent. So, it is tsunami. Often we hear about tsunami. Tsunami is a disaster when any earthquake, volcanoes, and other natural activity happens in ocean. जब भी कोई प्राकृतिक एक्टिविटी जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, ऐसी क्रियाएं समुद्र के अंदर होती हैं, तो समुद्र का पानी मूवमेंट में आता है. When it is a tsunami, so it flow very speedily. On the beach or coastal area of the oceans, got maximum disaster and affected by this. And this happened every year, but in India, the most destructive tsunami that reached India is on 2004, December 2004. That is very drastic or very destructive. So we learn about this in these lessons. Yes, I want to request for those who are new on these channels, I would like to have subscribe, like, comments from those who visits this channel first times. Also, hit the bell icons so you can get easily your new video that is very beneficial for you. Before this, I have published three video, lesson first, poem first, and this is the lesson second's first video, first part. So we proceed the lessons. Lesson's name is Tsunami. Now we learn introduction of the lesson. What is in this lesson? इस लेसन में किस घटनाक्रम किस थीम के बारे में बातचीत की गई है वो हम पढ़ेंगे. So a tsunami is a very large and powerful waves. Tsunami क्या है ये सबसे पहले बताया गया है. A tsunami is a large and a powerful wave caused by earthquake under sea. मैंने आपको पहले ही बताया था जब ओशियन के अंदर समुद्र के अंदर अर्थक्वेक्स की एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक्स आता है, सो तब समुद्र का जो पानी है वेव्स के रूप में इधर से उधर मूवमेंट करता है. दीज वेव्स आर सो स्ट्रॉन्ग, सो पावरफुल, they can swept away large buildings. They can destroy. That had happened many times. On December 26th December 2004. Listen, this is the date when tsunami hit Indian coastal areas in 2004, and this 26th is the Christmas period. 25th is the Christmas day. So most of the people of the world of the India were on the beach because these are holidays all over the world. So due to this, there is great loss of human beings also. A tsunami hit Thailand. ये tsunami कहाँ आई थी? Thailand, part of India such as Andaman Nicobar. इंडिया के कुछ पार्ट में इसका इफेक्ट हुआ. Mostly अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ because these are the group of islands in the Bay of Bengal, in mid of the oceans, around Thailand, Sumatra, southern part of the India, they in Pacific Ocean or in Indian Oceans, there was wave of tsunamis. So in these areas, there are many islands, many group of islands, they got maximum affected. And Tamil Nadu also. Here are some stories of courage
एंड इन दिस लेसन के अंदर हम कुछ साहस भरी कहानियां पढ़ेंगे। इस लेसन में 3 स्टोरीज दी हुई है। अलग-अलग स्टोरीज के माध्यम से अलग-अलग मैसेज देना चाहता है। हाउ पीपल मेड themselves survive, how they saved other people's, their colleagues. These all are things has been described in these lessons. Did animal, question है, did animal sense that tsunami was coming? क्या एनिमल इस बात का पता लगा सकते हैं कि सुनामी आने वाली है? क्या एनिमल्स को इस बात का पता चल जाता है कि कुछ न कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाला है? सम स्टोरी सजेस्ट दैट दे डिड। और कुछ कहानियां, इसकी एक कहानी जो है, इस लेसन की जो लास्ट स्टोरी जो है वो यही बताएगी कि एनिमल्स को कैसे पता चलता है कि नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। नाउ these are the some points that comes in lessons. These titles, these names, these name of any islands, countries comes in natural in our lessons. ये लेसन में बार-बार शब्द आएंगे तो इनके बारे में पहले जान लेते हैं। कटकल इज एन आइलैंड। कटकल एक अंडमान निकोबार का आइलैंड है। A part of the अंडमान निकोबार ग्रुप का है। Naukaveri is an island in Nicobar group. Naukaveri is the island in the Nicobar group. We all know that Andaman and Nicobar is a part of India and they are in eastern Bay of Bengal, eastern part of India. Bay of Bengal ओशियंस हैं जो इंडियन ओशियंस का पार्ट है, उसमें ये है। कटकली एंड निकोबार आर मोर देन 100 माइल अपार्ट फ्रॉम मेनलैंड ऑफ इंडिया। ये इंडिया के मेनलैंड से थोड़ा ही दूर है, 100 माइल्स ऑलमोस्ट इतना दूर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द वेस्ट ऑफ इंडिया। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड्स, और अंडमान आइलैंड के नॉर्थ में है। ये वेस्ट नहीं होगा, देयर मस्ट बी ईस्ट। दिस यस, these are the flow of the waters when tsunami hit the oceans. Tsunami hit the beach areas. Now you can see there is a flow of the waters. Everything has been destroyed. Houses has been turned on. This is the car that has been pulled off. These are some other things. So these are the effect. Now you can imagine that this type of a scenario created by the tsunami when it hit the coastal areas. Now this is the first part of the story. इस लेसन का जो फर्स्ट स्टोरी है, now starts. These stories are all from Andaman and Nicobar archaeologists, means group of islands. ये सब आइलैंड अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से ही है। तो पहली स्टोरी क्या है, हम वो भी पढ़ेंगे। Ignatius was the manager of a cooperative society in Katkal. मैंने बताया था Katkal is the part of Andaman Nicobar Islands. Ignatius is the name of a person, एक व्यक्ति का नाम है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कटकल में मैनेजर था। His wife woke him up at 6 a.m. उसकी पत्नी ने उसे सुबह जल्दी ही उठा दिया। क्यों? Because she felt an earthquake, क्योंकि उसने अर्थक्वेक को फील किया था। उसे लगा कि शायद अर्थक्वेक आया है। She noticed some movement in the surface of the grounds, so he quickly woke up her husbands and informed about the earthquake. Ignatius carefully took his television set off. जैसे ही उसको उठाया गया, उसे पता चला कि अर्थक्वेक आ गया है, तो उसने अपना टेलीविजन सेट जो था वो बंद कर दिया एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड, उसे ग्राउंड पर रख दिया। अब सबसे पहली बात ये है कि ऐसा क्यों किया? हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी नेचुरल डिजास्टर आए, अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, स्टॉर्म आए, हमें अपनी घरों की जो लाइट्स हैं उसको ऑफ कर देना चाहिए, या लाइट के लगे हुए जो उपकरण हैं उनको हटा देना चाहिए। जैसे फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, उनके प्लग्स को ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि पावर के अप डाउन होने से उनके सबसे ज्यादा नुकसान होने का चांसेस रहता है, वो खराब हो सकते हैं। तो उसने ऐसा किया so that it would not fall and break, ऐसा उसने किया। Then the family rushed out of the house. Rushed out means came out, भाग करके बाहर निकले। उनको पता चल गया कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो भाग करके बाहर निकले। This is the natural process
जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें ऐसा ही करना पड़ता है और हमें करना भी चाहिए। जब भी अर्थक्वेक आता है तो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए, हमें घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। पता नहीं अर्थक्वेक कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, कितना स्पीडी होगा, यदि हम अंदर हैं तो नुकसान हो सकता है, हमें बाहर ओपन जगह में जाके खड़े होना चाहिए ताकि हम अ, अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो वो उन्होंने भी ऐसा किया, वो घर से बाहर आ गए। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स का मतलब है कि अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी है, जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी, वो अर्थक्वेक आना, जाना, मूवमेंट होना, जब ये रुक गया, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र जो था, दैट इज़ इट्स वाटर इज़ राइजिंग, उसका पानी ऊपर उठ रहा था। In the chaos, unarrangement, we can say unordered way, and confusions, the two of his children caught hold of the hands of the mother's father and mother's brother. उनके दो लड़कों ने उनकी मदर्स के फादर और मदर के ब्रदर का हाथ पकड़ लिया एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस, दूसरी दिशा में दौड़े। ही नेवर शो देम अगेन, ही का मतलब है इग्निसस ने उनको कभी नहीं देखा। इट मीन्स they have been swept away in the water, they have lost their life. His wife have also swept away, उसकी पत्नी भी बह गई थी। Only the three other children who came with him were saved. तीन बच्चे जो इसके साथ में आए थे, टू पार्ट हो गए थे, उनके बच्चे, उसकी जो वाइफ थी, वो उसके मदर के फादर और उसके मदर के ब्रदर के साथ में अपोजिट डायरेक्शन में भागे थे। वो तो सेफ साइड में रन किया था उन्होंने तो, लेकिन उन लोगों ने अपोजिट समुद्र की तरफ भागे थे और वहां पर क्या था, पानी की वेव के साथ वो बह गए थे। ओनली थ्री चिल्ड्रन हु केम विद हिम, जो उसके साथ में आए थे वही बच पाए थे, बाकी बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। सो दिस इज द फर्स्ट story in the first paragraph of this lessons. In this paragraph we learn that how earthquake happens and what should we do, हमें क्या करना चाहिए जब हमें ये लगता है कि earthquake आ गया। We should rapidly come out the house, we should switch off the plug, we should cut our electricity supply in house, ये हमें करना चाहिए, और we should come on a safer place. These are the some things. Now, second part of this lesson, this is the second stanza. संजीव, ये तो पहले इग्निशियस की स्टोरी थी, हमें वहां से देखा कि क्या होता है, क्या हुआ उसके साथ में। अब एक संजीव नाम के पुलिसमैन व्यक्ति की स्टोरी है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विसिंग इन ए कटकल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में सर्विस किया करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कैसे ही बचाया। हिज वाइफ, हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपनी बेबी डॉटर को समुद्र की वेव से उसने अपने आप को बचाया। बट देन ही हैड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, द हाउस गेस्ट हाउस कुक। बट उसने अपने फैमिली मेंबर्स को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन जैसे वो बाहर आया तो उसने एक क्राई, चिल्लाने की आवाज सुनी, फॉर हेल्प, हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, जॉन की वाइफ से। जॉन कौन है? उनका गेस्ट हाउस कुक था। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए वो पानी में उसने जंप किया, बट वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों ही बह गए। both has lost their life. 13-year-old Meghna was swept away. ये तो संजीव की कहानी थी, that is over. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other peoples. Meghna is another girl that has faced this earthquake problem and this tsunami situation. So about Suena about मेघना that has swept away, पानी के साथ swept away का मतलब पानी के साथ बह जाना, swept away away पानी के साथ बह जाना। 17 other people के साथ में बह गई थी। She spent 2 days floating on the oceans, लेकिन वो पानी के साथ बहने से उसकी डेथ नहीं हुई थी। वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाई, वो 2 दिन तक तैरती रही। अब वो कैसे तैरेगी समुद्र के अंदर? होल्डिंग ऑन ए वुडन डोर, क्योंकि उसे एक वुडन डोर मिल गया था। जब वाटर की वेव्स कोस्टल एरिया में पहुंची तो बिल्डिंग से टकराई होगी, तो उस घर के जो गेट जो थे वो पानी के साथ में वापस ओशन में चले गए, और ये उस लड़की के लकीली उसको मिल गई। तो लकड़ी जो होती है जल्दी से अंदर
पानी में फ्लोट करती है, डूब नहीं पाती, तो वो उसके ऊपर कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकेगी 2 डेज़ तक। 11 टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर इट। जब वो ओशियन के अंदर थी, देन व्हेन शी वाज़ फ्लोटिंग इन द ओशियंस ऑन अ वुडन डोर, शी सॉ उसने देखा 11 टाइम्स रिलीफ हेलीकॉप्टर वो होते हैं, जो जब भी डिज़ास्टर होता है, उस समय उस देश की सेना या उस देश की गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के लिए जो हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती है, दैट इज़ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। उसने 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर देखा, बट दे मीन्स रिलीफ हेलीकॉप्टर के जो रेस्क्यूअर थे, उन्होंने डिड नॉट सी हर, उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वाज़ ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव। अब वो कैसे बची? एक पानी की स्ट्रॉन्ग लहर ने, वेव ने उसको समुद्र के किनारे ला दिया, लैंड पे आ गई। एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। डेज मीन्स इन अ कंफ्यूज्ड मैनर, इन अ वेरी टायर्ड मैनर, showing so much miserliness in his face. So she was found walking on the bridge. This is the story about Sanjeev and Meghna. Sanjeev has lost his life in rescuing the guest house cook's wife, and Meghna that has swept away with 77 people, but anyhow survived herself and came out to the land. Now, this is the third stanza of the first story. अभी first story चल रही है. We have learned Ignacius, Sanjeev, and Meghnad's story. Now, Almas Javed was a 10-year-old. अब आगे की कहानी है अलमस जावेद की. She was the student of Carmel Convent in Port Blair. वो पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान निकोबार. अंडमान निकोबार की जो कैपिटल सिटी है वो पोर्ट ब्लेयर है. वो पोर्ट ब्लेयर की एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था. वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. वहीं पे उसके फादर का पेट्रोल पंप था. हर मदर राहिलाज होम वाज इन ननकौरी आइलैंड्स. मैंने बताया था ननकौरी पहले इंट्रोडक्शन में, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में है. उसकी मदर का घर ननकौरी आइलैंड्स में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. और इनका जो परिवार जो था वहां पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था. ननकौरी ज्यादा इफेक्टेड था, पोर्ट ब्लेयर तो इतना इफेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन ननकौरी उसकी मदर का घर था, मैटरनल होम था वहाँ उनका, तो वो वहाँ सेलिब्रेशन के लिए गए हुए थे. When the tremor came early in the morning, the family was sleeping. ट्रेमर का मतलब जो अर्थक्वेक आया, वो जो आपदा आई, डिजास्टर हैपन हुआ, उस समय वो घर में सो रहे थे. अलमस फादर सो द वे वाटर रिसीड, सी वाटर रिसीव. और सुबह जल्दी ही अलमस के फादर ने देखा कि समुद्र का पानी रिसीड हो रहा था. रिसीड मीन्स पानी पीछे की तरफ मूव कर रहा था. पानी का मूवमेंट एक बार आगे होता है, एक बार पीछे होता है. उसने पानी को पीछे जाते हुए देखा. मुझे अंदाजा लगा कि जो पानी पीछे इतनी स्पीड से जा रहा है, वो आगे भी तो आएगा. He understood that water would come rushing back with great force. उसे उसने अंदाजा लगा लिया कि पानी जो वापस जा रहा है, वेव जो बैकवर्ड मूव कर रही है, वो आगे भी वापस आएगी. और वो जब आएगी तो दैट इज हैविंग ग्रेट फोर्स. He woke up everyone and tried to rush them to a safer place. उस सब लोगों को उसने जगाया और एक सेफर प्लेस पर ले जाने की उसने कोशिश की. एज दे रैन, जैसे वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन. जब वो वहां से भाग रहे थे तो उनके ग्रैंडफादर के सर में किसी चीज की लगी और वहीं वो गिर गए. फादर रस टू, हर फादर का मतलब है अलमस जावेद की पिताजी. रस टू हेल्प हिम, अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करने के लिए दौड़े. देन द फर्स्ट Then there came the first giant wave. Giant means a large and big waves, a very forceful waves, very strong waves that swept both of them. दोनों को साथ में भा करके ले गए. ये हमने पढ़ा है. Sanjeev that had saved her life and family, but lost his life because he tried to rescue a woman. And here, Almas Zaved's father has saved her family, has come on a safer place, but to save her, his daughter's grandfather, he and his grandfather lost his life. So sea waters
Water waves of the oceans are very strong. If we come touch with them, we can't oppose them. We have to surrender in front of them. We have to swept away with them. This is happen here. Now, Almas saw a log of wood floating. She climbed on it. अलमस ने देखा कि पेड़ का जो वुड का एक लोग था, एक पेड़ की टहनी थी, एक पेड़ की टंग थी, स्टेम थी, बहुत बड़ी शाखा थी, जो पानी में फ्लोट कर रही थी, तर रही थी। शी क्लाइम ऑन टू इट, उस पे चढ़ गई, एंड शी फेंटेड, फिर वो बेहोश भी हो गई। व्हेन शी वोक अप, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमरोटा कमोटा। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रोट टू फोर्ट ब्लेयर, वहां से उसको फोर्ट ब्लेयर लाया गया। लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। ये लड़की अपने साथ हुई हुई इस घटना को किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहती, बिकॉज शी बिकम वेरी स्कैर्ड। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, वो इसको कह नहीं पा रही थी कि ऐसा भी होता है क्या। देखिए, इस तरह से कोस्टल एरिया के घर जो होते हैं वोटर के साथ में फ्लो कर जाते हैं, स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दिस इज द पिक्चर दैट शो दैट the waves of the water are very strong, and she is still traumatized, afraid। अभी वो डरी हुई है, अभी वो टूटी फूटी, वो घायल अवस्था में। she could not sense herself in these conditions। this is the first part of the story। in this first part we study the experience of the many people, just like Sanjeev, Almas Javed, policeman, well, then and another persons, they have told us about their experience, how they saved themselves and so sweeping away the many peoples in the oceans, losing their life। Second part of this lesson, इस लेसन में थ्री पार्ट हैं, थ्री स्टोरीज हैं। अब सेकंड पार्ट में पहला जो पार्ट है वो हमने देखा है कि अर्थक्वेक आने के बाद लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग, लोगों ने अपने आप को कैसे सेव किया। आगे वाले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हमें इन चीजों के बारे में पहले से ही पता हो तो हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। इन जो पीछे वाले पार्ट के अंदर जो भी जिन लोगों ने भी इसको महसूस किया, उन लोगों को सुनामी के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें इस बात में के बारे में बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी कि जब भी सुनामी आती है, जब भी ओशन के अंदर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, इससे क्या-क्या हो सकता है। दिस स्टोरी टेल्स अस दिस, यही कहानी जो सेकंड पार्ट है वो यही बताता है। यहाँ एक लड़की है, इन दिस पार्ट देयर इज अ गर्ल्स दैट हैज बीन टॉट the effect of tsunami, the result of tsunami in her school. When on that day this girl showed this type of symptoms, she understood that there is an earthquake in the oceans and she saved life of many peoples. Now we learn. Tilly Smith, a British school girl, was able to save many life। वो बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में सफल हो सकी। क्यों हो सकी? क्योंकि she has been taught about tsunami in the school। उसको स्कूल में सुनामी के बारे में पढ़ाया गया था। When she when the tsunami struck Phuket beach in Thailand, ये थाईलैंड की कहानी है। लड़की इंग्लैंड की है जो थाईलैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी। Though she has won a number of awards, जब उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को सेव किया, रेस्क्यू किया, तो वो काफी पॉपुलर हो गई थी और उसने काफी लोगों की जान बचाई, तो उसने काफी प्राइज भी उसे मिले। Her parents have not allowed her daughter to be interviewed on the television। बहुत सारे मीडिया के लोगों ने इस गर्ल्स का इंटरव्यू लेने की भी कोशिश की, बट देयर फादर डिड नॉट अलाउ। Made no made into heroines, why do you think they took that decisions। अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो हम आगे लेसन में देखेंगे। Then here is the story of Thailand। थाईलैंड की स्टोरी सेकंड पार्ट के अंदर। The Smith family, Tilly Smith family from South East England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। साउदर्न थाईलैंड के बीच रिसोर्ट पर अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। टिली स्मिथ was a 10-year-old school girl।
टिली स्मिथ जो है छोटी-सी एक लड़की है 10 इयर्स की, हर सिस्टर वाज़ 7 ईयर ओल्ड, उसकी सिस्टर जो 7 ईयर ओल्ड की है, यंगर देन हर। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उसके पेरेंट्स का नाम है पेनी एंड कोलिन स्मिथ। इट इज़ 26 दिसंबर 2004 डेडली सुनामी, भयानक सुनामी, waves were already on their way, they were on the way. The tsunami was in the oceans, but they are unaware about it. Hilly families के बारे में unaware थी. They had been tricked by a massive earthquake of northern Sumatra earlier at that morning. उस दिन सुबह उन्होंने सुमात्रा में एक बहुत ही भयानक massively destructive earthquake देखा था, उन्होंने फील किया था। वाटर वाज़ स्वेलिंग, स्वेल का मतलब वैसे स्वेलिंग का मतलब नेचुरल हम देखें तो सुजावट, कोई भी चीज़ हमारे लग जाने से बॉडी में जो बॉडी के ऊपर सुजावट आ जाती है, मसर खाने से जो बॉडी में सुजावट आ लेकिन यहाँ स्वेलिंग का मतलब कि पानी ऊपर उठ रहा था, उफन रहा था एंड केप्ट कमिंग और ऐसा लग रहा है पानी उफनते हुए आ रहा है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, उसे याद था, द बीच वाज़ गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जब उसने देखा तो जो बीच जो था वो छोटा हो रहा था। मतलब वाटर लेवल जो था बढ़ रहा था। लैंड एरिया को वाटर जो कवर कर रहा था। इट मीन्स देयर वाज़ ए सुनामी। आई डिडन्ट नो व्हाट वाज़ हैपनिंग। वो कहता है कि मुझे ये तो पता नहीं था कि क्या होने वाला था, क्योंकि टोनी स्मिथ हैड नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द सुनामी अर्लियर। उसे इसके बारे में पता नहीं था। उसकी लड़की को उस स्कूल टीचर ने पढ़ाया था कि जब ओशन में सुनामी आती है तो क्या होता है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज़ रॉन्ग, लेकिन उसे पता चला कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है, तभी तो इतना ओशियन जो का वाटर जो स्पीड स्पीड से बह रहा है। her mind kept going back to a geography lessons। जैसे उसने इस तरह की एक्टिविटी देखी, तो उसके दिमाग में वो ज्योग्राफी का लेसन आया। She had taken in the England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। अपने फैमिली के साथ में थाईलैंड आने से 2 वीक पहले ही उसने उस लेसन को पढ़ा था। Spelling का मतलब getting upward। Now in this part, this is the second part of the story of this lessons, story of Smithy. Jolie Smith is a school girl. She has been taught about this, how the tsunami happened. Now we learn पार्ट सेकंड की स्टोरी है। टिली सो द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि समुद्र जो सी था स्लोली राइज हो रहा था एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फोम व्हीलफुल, और उसमें दाग भी आ रहे थे, फोम्स भी आ रही थी, बबल्स भी आ रहे थे एंड फोम है व्हीलफुल। व्हीलफुल मतलब पानी का भंवर बनना, एक जगह पानी गोल घूमना, स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है इधर से उधर चलना, व्हीलफुल हो रहा था। सी रिमेम्बर्ड दैट she had seen this in a class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii island in 1946। उससे याद उसने याद किया कि इस तरह का वीडियो मैं मेरी क्लास में देख चुकी हूँ, तो सुनामी के बारे में था। तो सुनामी 1946 में हवाई हवाई इज ए आइलैंड ऑफ अमेरिका और अमेरिकन पार्ट्स, ओके। अमेरिकन पार्ट्स में इस तरह की सुनामी 1946 में आई थी। उस समय का एक वीडियो था जो उनकी क्लास में शेयर किया गया था। वो कहते कि मैंने देखा, हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने इस वीडियो को शो किया था एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। और उसके टीचर ने ये भी बताया था कि सुनामी कैसे आती है। तो सुनामी जो है अर्थक्वेक से आ सकती है, वोल्केनोज से आ सकती है एंड लैंडस्लाइड से आ सकती है। द टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। जब उसे ये बातें सब पता चली कि सुनामी है, इस तरह की एक्टिविटी जो होती है सुनामी की होती है, तो जोर से चिल्लाई अपनी फैमिली की ओर, बोले गेट ऑफ द बीच, बीच से दूर हो जाइए, रन अवे फ्रॉम द बीच, गेट ऑफ रन अवे फ्रॉम द बीच। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर सी। उसने कहा कि अर्थक्वेक के अंदर ओशन के अंदर अर्थक्वेक आ गया है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिक मीन्स you पागल हो जाना। When someone laugh, cry, shout in a excited manner, बहुत ही एक्साइटेड मैनर में जब आदमी बहुत ही चिल्लाता है, जोर-जोर से हँसता है, so that is hysterical। Said her mother Fanny, उसकी मदर फैनी कहती है कि she became very confused or laughing in excitement।
आई डिडंट नो व्हाट द सुनामी वाज़। उसकी मदर कहती थी मुझे तो पता नहीं था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, वो कहती कि मेरी बेटी को इतना फ्राइटेंड देख करके, इतनी डरी हुई कंडीशन में देख करके, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मैंने अनुमान लगा लिया, उसकी मदर कहती है कि मैंने ये अनुमान लगा लिया कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। देन Lily's parents took her and her sister away from the beach to a swimming pool in at hotel। और जैसे उनको पता चला कि सुनामी आने वाली है, तो उन्होंने अपने फैमिली को, टिली की सिस्टर को किसी दूसरे होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच एट विद देम। वो भी उनके साथ उन्होंने बीच छोड़ दी। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वाज स्क्रीमिंग रन। ऐसा लगा कि पूरा समुद्र उनके पीछे दौड़ रहा हो, समुद्र उनके पीछे दौड़ रहा हो, मतलब पानी स्पीड से लैंड एरिया को कवर कर। देन इन द नेक्स्ट डे द फैमिली टुक रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब शरण लेना। इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के थर्ड फ्लोर में फैमिली ने शरण ली। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ द थ्री सुनामी वेव्स। विथस्टूड का मतलब होता है एंड्योर विदाउट कोलैप्स। जिस बिल्डिंग में उन्होंने रिफ्यूज लिया था, शेल्टर लिया था, उस बिल्डिंग ने सुनामी की 3 बड़ी-बड़ी वेव्स को फेस किया था, बिल्कुल भी हिली नहीं थी। वो बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ओशियंस की वेव्स को आराम से फेस कर सकती थी। इफ दे हैड स्टेड ऑन बीच, यदि वो बीच पे रह जाते, अब बात ये है कि यदि वो वहाँ से नहीं आते तो क्या होता? इफ दे हैड स्टेड ऑन बीच, दे वुड नॉट हैव सीन अलाइव, वो जिंदा नहीं बच पाते। The Smiths, the Smiths का मतलब स्मिथ फैमिली लेटर मेट अदर टूरिस्ट, टूरिस्ट से मिलती है। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जो उन लोगों से मिलती है जो अपना पूरा परिवार खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड ज्योग्राफी लेसन्स दे हैड बीन फोर फोर वन का मतलब पहले से उनको चेतावनी मिल चुकी। जिन लोगों ने अपने जीवन को बचा लिया, जिन लोगों ने अपने परिवार को, अपनी फैमिली को सर्वाइव कर लिया, उनके लिए टिली का ज्योग्राफी लेसन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो उन्होंने थैंक्स कहा। Tilly went back to her school in England. Tilly अपनी वापस स्कूल गई and told her classmate her terrific tales। अपनी इस कहानी को उसने उन लोगों को बताया। Terrific story, terrifying story means a fearful story कहानी। Now this is the third part। second part और हो गया है। In second part ये हमें बताता है कि इन चीजों को के बारे में जब हम पहले से अवेयर होते हैं, तो हम बहुत कुछ लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। जैसे कि टिली स्मिथ को इसके बारे में पता चल गया कि सुनामी आने वाली है। क्योंकि उसे स्कूल में इसके बारे में पढ़ा दिया गया था, तो उसने काफ़ी लोगों की जान भी बचा ली थी। इन से थर्ड पार्ट, लुक केयरफुल एट द पिक्चर ऑफ द बॉयज विद अ डॉग। देयर इज अ पिक्चर दैट हैविंग अ डॉग इन हिज लैप। ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। अब आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में लिखना है। यूजिंग जस्ट वर्ड्स, फ्रेजेस। Either the teacher or one of the students can write down the words, phrases on the board। और स्कूल में बच्चे या कोई भी एक टीचर जो है, वो ब्लैक बोर्ड में कौन-कौन सी फ्रेज़ें हमें काम में लेनी है, उनको हम बोर्ड पे लिख सकते हैं। उन फ्रेज़ेज़ की हेल्प से हम इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, लेसन में पढ़ेंगे। हम कौन-कौन सी फ्रेज़ काम में ले सकते हैं, जो रिकमेंडेड है वो है, दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, काम, ब्लू, सी, रूइंड, हेड्स। ये लिखना है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो ओशन बिल्कुल शांत था, ब्लू था, लेकिन अचानक वो ट्रेमरस हो गया, उसने आस-पास के सभी सी-शोर को रूइन्ड कर दिया। इस तरह की स्टोरीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं। हम पढ़ते हैं फिर क्या होता है आगे। ये थर्ड पार्ट है लेसन का। बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। अब इस ये थर्ड पार्ट उस क्वेश्चन का आंसर है जो लेसन के इंट्रोडक्शन में आया था कि क्या एनिमल्स को नेचुरल डिजास्टर के बारे में पहले ही पता चल जाता है? हाँ, ये चीज़ इस पार्ट में पढ़ाई जाएगी। ये यहाँ बताया गया है कि जब जायंट का मतलब बिग वेव्स, ग्रेट वेव्स, वेव्स दैट हैज़ मच पावरफुल। जायंट का मतलब ऐसे राक्षस होता है। तो यहाँ जायंट वेव्स क्यों कहा गया है कि
वेव्स होती है वो जायंट एक राक्षस की तरह बिहेव कर रही थी। उसे ये पता नहीं था कि मैं किन किन लोगों को मार रहा हूँ। ओके, सो जायंट वेव्स इंडिया और श्रीलंका की कोस्टल एरिया के स्लैम होने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो। वाइल्ड का मतलब जंगली और घरेलू जानवर जो थे उनको लगता है कि पता चल गया था व्हाट वाज अबाउट टू हैपन कि क्या होने वाला है। कैसे पता चल गया था उनको, अब बढ़ते हैं। दे यहाँ है वाइल्ड एनिमल डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए कि उनके जो वाइल्ड एनिमल्स थे दे फ्लेड सेफ्टी प्लेस, वहां से एक सुरक्षित जगह में भाग गए थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, वहां के जो लोगों ने उनको देखा, लोग जिन्होंने इन एनिमल्स को भागते हुए देखा, उनके अनुसार एलिफेंट्स स्किम्ड एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड्स। एलिफेंट जो उस एरिया के थे वो जोर जोर से स्किम किया और सुरक्षित जगह हायर प्लेस, जो ऊंची जगह थी, जो हाइट पे थी, वहां पे चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। डॉग्स जो नेचुरली बाहर जाया करते थे, उन्होंने घर से बाहर निकलना रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब इनकार करना, डिनाई करना वी कैन से। एंड फ्लेमिंगोज अबंडन, अबंडन का मतलब होता है लीव कर देना, रिफ्यूज कर देना। द लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया, जो नीचे की जगह थी वहां पर जाने से रिफ्यूज कर दिया था, वहां पे जा नहीं पा रहे थे। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स, और जू एनिमल जो थे ना वो अपने शेल्टर में चले गए, आश्रम में चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक अबाउट, कम आउट, कम बैक आउट, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। मैनी पीपल बिलीव, ये तो एनिमल्स की एक्टिविटी थी जो हमने यहाँ पढ़ी है। बहुत सारे लोगों का विश्वास है, मानना है, क्या है, दैट एनिमल पोजेज ए सिक्स सेंस, कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है। नो व्हेन अर्थ इज गोइंग टू सेक, उनको ये पता चल जाता है कि अब अर्थ में क्या होने वाला है। ओके, वो कैसे? सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। कुछ लोगों का ये मानना है कि एनिमल्स के सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो अर्थ की वाइब्रेशन को अच्छी तरह से फील कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। यही एक वजह है, जैसे पिकॉक जो मोर जो होता है उसको हजारों लाखों किलोमीटर की दूर की आवाज सुनाई देती थी। तो इन एनिमल्स में सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, काफी दूर की एक्टिविटी को सुन सकते हैं और अर्थ के वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं। तो इसी वजह से वो उनको पता चल जाता है कि कुछ न कुछ होने वाला है। They can sense approaching disaster long before human realize that what is going on। आदमी को पता चलने से पहले उनको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। Now next part of the lessons, we can't see, we can't be sure whether animals have a sixth sense or not। अब हम ये तो कंफर्मली नहीं कह सकते कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन बात यह है कि जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्री। दर्जनों देशों में 1,50,000 से अधिक लोग मर गए थे जब ये जायंट वेव्स इन एरियाज में आई थी, इन ओशंस में आई थी। बट नॉट ओनली, बट नॉट मेनी एनिमल्स हैड बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन एनिमल्स ज्यादा नहीं मरे थे। 150 लाख लोग तो मर गए थे, लेकिन एनिमल्स की इतनी संख्या नहीं थी। ये बताता है कि एनिमल्स को पहले पता चल गया तो वहां से भाग गए थे। अलोंग इंडियाज कुडलोर कोस्ट where thousands of people perished, जहाँ बहुत सारे लोग मर गए थे। buffaloes, goats, dogs were found unharmed। वहां पर buffaloes जो थे, goats थी, dogs थे, वो unharmed मिले, उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। Yala National Park in Sri Lanka is a home to a variety of animals including elephants, leopard, and 130 species of the birds। 60 visitors were washed away from the Petangala beach inside the park, but no animal carcasses, carcasses का मतलब dead bodies, animals के dead bodies were found except for two water buffaloes। two water buffalo के अलावा ज्यादा animals की वहाँ dead body नहीं मिली। It means animals has got earlier information that what is going to happen। Now about an hour before the tsunami hit करने के 1 घंटे पहले ही people at Yana National Park had observed 3 elephants running away from Pentan Gulf Beach।
उन जो याला नेशनल पार्क के लोग थे उन्होंने देखा कि एनिमल जो थे पेंटागोनल बीच से दूर भाग रहे थे। A Sri gentleman who lives on coastal near the village said his dog would not go for the daily run on the beach। वो बताता है कि मेरा कुत्ता जो हमेशा के लिए बीच पे जाया करता था, लेकिन उस दिन उसने जाने से इनकार कर दिया। They were usually excited to go on the outings। लोग हमेशा ही डॉग की हैबिट थी कि हमेशा ही वो बाहर जाने का हमेशा तैयार रहता था, लेकिन उस दिन नहीं गया। He said that on that day they refused to go, the most probably saved the life। उस दिन वो जाने से इनकार कर दिया, इसी वजह से उनकी लाइफ बच गई। So in this part we learn how animals got information about the incident that is going to happen about the earth, earthquake, volcanoes and other storms things are there. Now lesson is over. Thanks for watching. If you have any problems, any queries, any questions, please comment in comment box. I have explained this lesson very nicely. I have written many word meanings separately. In spite of this, if you have any problems, you should write in your inbox and subscribe it, like it, comment it, share with your friends, ask your friends to watch this video. Continually, I will share all the videos that related to your subjects. Thanks for watching.